Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing very well. So I am back with a new chapter, chapter number 10, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Before going into this chapter, we should be aware of the following. The first one, basic multiplication and the idea of repeated multiplication. Understanding factors and how numbers can be broken down into their factors. The concept of bases and exponents such as in simple expression like 2 to the power 3, तो कैसे पढ़ा जाएगा? 2 raised to the power 3. यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 2 to the power 3 का क्या मतलब है? 2 raised to the power of 3. Next, multiplication of integers and dealing with positive and negative numbers. Square and cube numbers from previous classes, basic number properties such as commutative and associative property of multiplication. So you have to take care of these points. Okay, now you can see बच्चों parts of power, इसे हम बोलते हैं base, ठीक है, जो कि ये x है। वहीं पर बच्चों ये जो n है इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एंड यहाँ पे ये जो पूरा है इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पावर। पढ़ा कैसे जाएगा? 7 to the power 3. 7 is raised to the power 3 or 7 to the power 3, whatever you want to say. So base है आपका 7, exponent है आपका 3. Okay, now let's move forward and let's explore the concept power with negative exponents. We know that अगर 2 को हम इतनी बार लिख रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 7, क्योंकि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. So we can write it as 2 to the power 7. Here 2 is the base and 7 क्या है बच्चों? Exponent है। और you can also say index 2 to the power 7 is read as 2 raised to the power 7 or 2 to the power 7 as I told you. Now -2 की अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी बार? 5 बार। सो आप इसे लिख सकते हैं -2 to the power 5. वहीं पर अगर बच्चों आप -3/7 की -3/7 माय बैड -3/7 की 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? -3 raised to the power 7. Clear? Now let's move forward and here you can see. So if a is any rational number, a can be any rational number and n is a positive integer, so you can write it as, if you are multiplying a many times or it can be n times, so you can write it as a to the power n. Now a to the power n is called to the nth power of a and is also read as a raised to the power n. The rational number a is called the base and n is called the exponent, or you can even say it as power or index. Clear? Now you can see that, for example, if p upon q is any rational number, then how can you write it as, if p upon q to the power 3, so that means आप p अपॉन क्यू की कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 बार। अगर आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें तो p टू द पावर 3 एंड q की अगर डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करें तो q की पावर 3। सो इसका क्या मतलब है कि अगर हम p अपॉन q की पावर n है, सो p टू द पावर n एंड q टू द पावर n में ब्रेक डाउन करके इसे लिख सकते हैं। सो दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट्स यूज दिस फॉर्मूला टू एवल्यूएट दिस क्वेश्चंस। 2 टू द पावर 2/7 टू द पावर 5, इसका क्या मतलब है? 2/7 टू द पावर 5 का मतलब है कि 2 की पावर 5 एंड 7 की पावर 5। नाउ 2 की पावर 5 का मतलब है कि 2 की 5 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 एंड 7 टू द पावर 5 का मतलब है 7 की 5 बार मल्टीप्लाई। सो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा? 32/16,807। क्लियर? ऐसे ही बच्चों अगर आपको -1/5 की पावर 3 है, सो इसका क्या मतलब है? -1 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। -1 की 3 बार मल्टीप्लाई आपको मिलेगा -1 एंड 5 की 3 बार मल्टीप्लाई विल गिव यू 125। ऐसे ही नेक्स्ट बच्चों -4/7 की पावर 4 है, दैट मीन्स -4 की पावर 4 एंड 7 की पावर 4। -4 की पावर 4 की यानी मतलब -4 की 4 बार मल्टीप्लाई होगी, सो यू विल गेट पॉजिटिव नंबर। माइनस की इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो यू विल गेट इवन नंबर, और इसका आंसर आएगा 256। और अगर आप 7 की 4 बार मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट 2401। अब ये बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर -1 की पावर n है और n जो है आपका वो ऑड है, सो आपको -1 ही मिलेगा, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर मिलेगा। ओके, एंड अगर n जो है इवन इंटीजर है, सो यू विल गेट पॉजिटिव नंबर। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों,
सो बेसिकली बच्चों मैं इसको एवल्यूएट करके बताती हूँ। अगर -1 की पावर 2 है, इवन है ऑड, इवन है, सो यू विल गेट +1। अगर -1 की पावर 3 है जो कि ऑड है, सो आपका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पॉजिटिव एक्सपोनेंट। सो कुछ लॉज हैं, जैसे पहला लॉ देखिए, अगर p अपॉन क्यू टू द पावर m है, p अपॉन क्यू टू द पावर n है, बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर ऐड हो जाती है। दूसरा लॉ क्या कहता है, डिवाइड में अगर बेस सेम है और पावर अलग है तो पावर माइनस हो जाती है, बट ये रिमेंबर रखना कि m शुड बी ग्रेटर देन n। अगर डिवाइड में यहाँ पर अगर देखें बेस सेम है, पावर अलग है, तो हमें पता है पावर माइनस हो जाती है, बट अगर हम 1 के फॉर्म में लिखते हैं तो n माइनस m होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है m इंटू n। If p upon q is a non-zero rational number and we have p upon q to the power 0, so you will get 1। अगर कोई भी आपके पास नंबर है और उसकी पावर 0 है, you will get 1। If p upon q and r upon s are two rational numbers and m is a positive integer like this, दोनों में m कॉमन है आ जाएगा। ठीक है, और दोनों रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करते हैं। आपको बोला गया है -4/5 की पावर 3 है एंड -4/5 की पावर 2 है, दोनों का बेस सेम है ना। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, p अपॉन क्यू की पावर m, p अपॉन क्यू की पावर n। सो दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। सो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। सो फाइनल आंसर कितना मिला, -4/5 टू द पावर 5। बट आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, सो फर्दर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, -4 टू द पावर 5 एंड 5 टू द पावर 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो -4 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, 5 की 5 टाइम मल्टीप्लाई होगी, फाइनल आंसर आपको कितना मिलेगा, -1125। Now let's move forward and let's see simplify। So अगर आपसे बोला गया है कि 3/7 की पावर 5 है, ठीक है, एंड डिवाइड में ध्यान रखना दोनों का देखिए बेस सेम है और डिवाइड में पावर अगर अलग है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। सो 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, और 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3, 7 की पावर 2 मतलब 7 इंटू 7, 3 3 is 9 and 7 into 7 you will get 49। So 7/49 is the answer। नेक्स्ट देखिए बच्चों सिंप्लीफाई में एग्जाम्पल 4 में क्या बोला है कि -3/5 की पावर कितनी है 7, -3/5 की पावर कितनी है 10, बेस क्या है सेम, बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है। आप देखिए बच्चों डिवाइड में है तो हम 1 अपॉन में करके n माइनस m करेंगे, n की वैल्यू कितनी है इधर 10 और m की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, n - 7 कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 7, राइट, क्योंकि यहाँ पे m क्या है लेस देन n है। अगर m लेस देन n होता है तो 1 अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, एंड -3/5 की पावर 3। अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए 5/3 माइनस का 3 की पावर 3। अब इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइनल आंसर आपका आएगा 125/-27। नेक्स्ट देखिए बच्चों सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2। सो कैसे करेंगे, पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 10। अब बच्चे देखिए यहाँ 2 टू द पावर 10 आया है, या तो आप इसे सिंप्लीफाई करके 2 टू द पावर 10 को सिंप्लीफाई कर दीजिए, लाइक अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे मे बी विल गेट 1024। ओके, अदरवाइज आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर है, चलिए वैसे लिख ही देती हूँ मैं आपको 1024। ठीक है, जब आप 2 की 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई -1/3 की पावर 0। आइडेंटिटी आई टोल्ड यू, किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 होती है विल गेट 1, सो सिंप्लीफाई इज डायरेक्टली आंसर विल बी 1। नेक्स्ट देखिए 3/7 की पावर 3, 14/15 की पावर 3, दोनों की पावर क्या है सेम। अगर पावर सेम है तो रैशनल नंबर क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। सो 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 14 से, और 7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 15 से। सो यहाँ पे 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा, देखिए या तो आप इधर ही सिंप्लीफाई कर दीजिए 2/5 आ जाएगा, एंड 2 टू द पावर 3 मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 यानी 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, योर आंसर विल बी 8/125। क्लियर, क्लियर हुआ बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स. सो वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ 5 is equal to 1/5 and reciprocal of 6 will be 1/6. That is reciprocal of a is equal to 1/a, where a must be, remember, a must not be equal to 0. I mean a should never be equal to 0. कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, इनडिफाइन हो जाएगा अगर a 0 हो जाता है तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5, जो कि क्या होता है 5/3, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, 1 के अपॉन में लिख दो, दैट विल गिव यू 5/3. एंड आप इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको 3/5 ही रखना है तो बट इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में. ठीक है, सो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5 का क्या होगा, 3/5 to the power -5, that is called negative integer as exponents. So hence reciprocal of 4/7 to the power 2 कितना होगा, 7/4 to the power 2. अदरवाइज आप 4/7 की पावर -2 कर सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम द above discussion we can conclude if p/q is any non-zero rational number and m is any positive integer, then how can you write it? So you can write it in this form, like अगर आपका p/q की पावर -m है तो आप 1/, में करके इसकी पावर को पॉजिटिव कर दीजिए और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा q/p, राइट, q/p की पावर m हो जाएगी. क्लियर, आगे बढ़े. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल बच्चों. एक्सप्रेस कीजिए 1/3 to the power -5. यू कैन सिंप्लीफाई, दैट मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई. सो कैसे करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपने 1/3 की पावर -5 है, इसे 1 के फॉर्म में करके लिखा, रेसिप्रोकल करा, मल्टीप्लिकेटिव, तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव. अब बच्चों ध्यान से देखिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट सॉल्व. तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, -1 की पावर 5/3 की पावर 5. अब ये माइनस का है, मैं बैड, चाहे तो आप क्या करिए, इसे आप लिख दीजिए जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना बच्चों, आपको मिलेगा 3/1 की पावर 5. हम पॉजिटिव पावर में सॉल्व करेंगे, नेगेटिव में नहीं करेंगे, क्योंकि यही मेन एम है कि हम नेगेटिव इंटीजर को क्या काम कर दें, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें. सो ध्यान रखना, जब भी आपको नेगेटिव इंटीजर्स दिया हुआ हो, सो मेन एम क्या होना चाहिए, एम शुड बी टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पावर कैसे सॉल्व करना है अगर सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है तो. अदरवाइज आपको एज इट इज सॉल्व कर लेना है, लाइक 3/1 की पावर 5. इसका क्या मतलब है, 3 की पावर 5 और 1 की पावर 5. लेट मी सिंप्लीफाई इट, दैट विल बी 243 इज आंसर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बच्चों. -5/8 to the power -3. अगेन इंटीजर नेगेटिव है, इट्स ओके, बट पावर शुड नॉट बी नेगेटिव. सो 8/-5 हो जाएगा. ये बच्चों गलत लिखा हुआ है, -5/8 होगा. ठीक है, 8/-5 to the power 3 हो जाएगी. अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, 8 की 3 बार मल्टीप्लाई एंड -5 की 3 बार मल्टीप्लाई. 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपको 512 मिलेगा, -5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -125. क्लियर, आगे बढ़े. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सिंप्लीफाई. अब इसमें देखिए क्या बोला है, 125 इंटू टी टू द पावर -5. 5 की पावर कितनी हुई, -5 एंड इंटू 20 टी टू द पावर -9. आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, देखिए आपको पता है आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो 125 को, राइट, एंड 5 की पावर जो -5 है नेगेटिव, अगर आप उसका रेसिप्रोकल कर दो तो 5 की पावर 5 पॉजिटिव हो जाएगी. ऐसे ही t की पावर -9 भी ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, है ना. अब नेक्स्ट देखिए 20 सिर्फ नीचे रह जाएगा. अब इन दोनों को देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, तो 5 की पावर 8, t टू द पावर 9 -5 कितना हो जाएगा, t टू द पावर 4. ओके, सो ऐसे आपको इसे सॉल्व करना है. ये हो जाएगा t टू द पावर 9 -5, और अगर आप 20 को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको कितना मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 5. सो बेसिकली आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2 टू द पावर 2 इंटू 5. अब बच्चों ध्यान से देखिए, हो गया 5 की पावर 8. अब ये 5 जब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2 टू द पावर 2 विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 4. अब 5 की पावर 8 इंटू 5 की पावर -1 यू विल गेट 5 की पावर 7 इंटू t टू द पावर 4 एंड दिस इज अ फाइनल आंसर. ऐसे ही नेक्स्ट को सिंप्लीफाई करते हैं. 6 की पावर -5 है, 10 टू द पावर -2 है इंटू 125.
अपॉन 5 की पावर -5 इंटू 6 टू द पावर -3। सबसे पहले क्या कीजिए बच्चों, 6 की पावर -5 है, ठीक है, इसको पॉजिटिव कर लीजिए, कैसे, न्यूमरेटर में करके यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर 10 टू द पावर -2 है, इसे आप क्या करेंगे, एज इट इज रहने दीजिए एज ऑफ नाउ। अभी आपको क्या करना है मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है, -5 की पावर -5 है, इसे पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है, हो गया, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। एंड 125 को हम 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। क्लियर, डिनोमिनेटर क्लियर। अब देखिए बच्चों, ये सॉल्व होगा तो 6 टू द पावर -2 मिलेगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको इसे पता है कि हम इसे 2 इंटू 5 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब है 2 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -2। यहाँ पे आप देखिए, वहीं पर 5 की पावर 3, 5 की पावर 8, 5 की पावर 8 हो जाएगी, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 5, 5 की पावर 8 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कीजिए बच्चों, अगेन आप इसको ब्रेक डाउन कर देंगे 2 टू द पावर -2 एंड 3 टू द पावर -2 में। एंड यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखिए जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ पर आप देखिए 5 की पावर -2 एंड 5 की पावर 8, 5 की पावर 6 मिलेगा एंड 2 टू द पावर -2 एज इट इज। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, 2 टू द पावर -2 देन 2 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर -4, है ना। और नीचे जाते ही या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। इसको भी हमने पॉजिटिव बना दिया, 5 की पावर 6 एज इट इज रह गया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 144, इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा 15,625। दिस इज अ फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच for which 5 to the power m into 5 to the power -2 is equal to 5 to the power 7। So आपको पता है कि इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 5 - 2 हो जाएगा एंड 5 to the power 7। अब बच्चों ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपके x to the power m plus n और is equal to x to the power p है तो m plus n is equal to p हो जाता है, ठीक है, ये एक रूल है। सो यहाँ पर m - 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2 जब दूसरी साइड जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। क्लियर, सिंस बेसिस आर सेम ऑन बोथ साइड्स सो पावर मस्ट बी इक्वल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है बच्चों आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ m। 7/11 की पावर है 2m, 11/7 की पावर है 4 और ये किसके इक्वल है, 49/121 टू द पावर -3। अब बच्चों आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता है 49 को 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं एंड 121 को 11 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखिए उस फॉर्मेट में उसे चेंज कर दिया। अब देखिए जब बेस सेम है पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2m - 4 ये कितना हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, पावर गेट्स मल्टीप्लाइड -6। सो 2m - 4 इज इक्वल टू -6। अब 2m यहाँ पे -6 है प्लस 4 हो जाएगा, सो आपको कितना मिलेगा, ये देगा -2, 2m इज इक्वल टू -2 और m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही बच्चों आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। यहाँ देखिए एक्सरसाइज में आपको बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं। एवल्यूएट एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है, 1 की पावर भी 3 है एंड 3 की पावर 3 है, सो 1 की पावर 3 को एवल्यूएट करेंगे 1 आएगा, 3 की पावर 3 को एवल्यूएट करेंगे 27 आएगा। दिस वन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज -2 है, -2 की पावर जब इवन नंबर होती है यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव नंबर एंड 2 की पावर 4 दैट मीन्स 16। ऐसे ही अपॉन में 5 की पावर 4 दैट मीन्स कितना आंसर आएगा बच्चों, 625। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ अगर आइडेंटिटी की बात करें बच्चों, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, राइट, सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, मैं आपको बताती हूँ आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करनी है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 3 + 5 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3 टू द पावर 8। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों इवैल्यूएट, इसमें क्या करना है, पावर के ऊपर पावर है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8 टू द पावर 6। ऐसे ही डिवाइड में बच्चों आपका पावर के ऊपर पावर 5/8 टू द पावर 3 इंटू 2 6। अब बच्चों ध्यान से देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो 6 + 6 कितना होता है बच्चों, 12। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ ये भी आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। अब ध्यान दीजिए बच्चों 1/3, 50 - 50 कितना हो जाएगा, 0। सो दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको सिंप्लीफाई करने हैं। आई होप यू विल ट्राई इट। यहाँ पे देखिए बच्चों बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, 3/11 की पावर क्या हो जाएंगी, -3 माइनस मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू 3/11 की पावर x।
ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया, कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है बच्चों, यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो वी नो दैट वी हैव रीड हाउ टू एक्सप्रेस लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इतना बड़ा लार्ज नंबर दिया, यू कांट रीड आउट ऑलवेज करेक्ट, सो आपको तुरंत पढ़ना हो तो आप नहीं पढ़ पाओगे, बट यू कैन एक्सप्रेस इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज वेरी इजीली टू रीड 3.43 into 10 to the power 7. This is also a large number and this one is standard form. Now you can easily read out it. So here we will learn how to express small number in the standard form. We know that 0.1 can be written as 1 upon 10 and we can also write it as 10 to the power minus 1. अगर हम 0.01 की बात करें, so we can write it as 1 upon 100 and 1 upon 100, 100 का क्या मतलब है 10 to the power 2 and you can express it in negative integer 10 to the power minus 2. Now in the same manner when you will remove the decimal from here, so बच्चों आपको upon में कितने zeros मिल जाएंगे 5, so 1 upon 10 to the power 5 and you can write it as 10 to the power minus 5. In the same manner यहाँ से जब आप decimal हटाएंगे you will get 10 to the power 3 in the denominator and you can write it as 7 into 10 to the power minus 3. Are you getting my point? So what are we doing actually, हम decimal हटा रहे हैं, 9 upon 10 कितनी पावर हो जाएगी 1 2 3 4 5, तो ये होगा 10 टू द पावर 5। जब यहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करेंगे तो क्या हो जाएगी पावर नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो नेगेटिव, वाइस वर्सा। यहाँ पे देखिए बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन, जब आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 zeros आएंगे नीचे, 10 टू द पावर 8 कैन बी रिटन एज ओके द गिवन नंबर। नाउ 562 ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8। सो आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको, ये 10 टू द पावर माइनस 8 हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए 562 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप इसे ध्यान से देखिए बच्चों केयरफुली, दिस इज 562 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सो हमें पता है डेसिमल अभी कहाँ है 2 के बाद, अगर इसमें डेसिमल नहीं है, डेसिमल यहाँ पे, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे कहां पर लेफ्ट हैंड साइड, तो पावर क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब हम देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नाउ यू नो दैट बेस आर सेम, पावर विल गेट एडेड, सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 6। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, एग्जाम्पल देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। एज आई टोल्ड यू ऑलवेज रिमेंबर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे होते हैं, इन द केस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए जब आप डेसिमल को हटाओगे तो आपके अपॉन में 12 zeros होंगे, 10 to the power 0। So when you will shift it from denominator to numerator, the power will be negative, so 10 to the power minus 12। Now you can see that, is it in standard form? No, not yet। So what will you do? You can see 0 is here, decimal is here, shift कीजिए, so 7.29 into 10 to the power 2 then into 10 to the power minus 12। when you will solve it you will get this answer। okay, next देखिए बच्चों this one। so यहाँ पे देखिए कितने zeros है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 0 है 7 and 8, so 7.29 into 10 to the power 8। क्लियर? नाउ बच्चों अब हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूजुअल, वी विल राइट इन द यूजुअल फॉर्म। अब तक हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे थे, बट अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 5.16 into 10 to the power minus 5 दे रखा है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस पावर को। अब बच्चों यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 5, जब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो 5 डिजिट शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? आपने डेसिमल सीखा हुआ है तो आपको शिफ्टिंग आती है। देखिए अब ये 10 to the power 12 है। सो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हटाएंगे, अपॉन में 10 जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल होगा एंड दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी सी द अबव एग्जांपल्स अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म एंड नोट दिस पॉइंट, देयर इज ओनली वन डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एज आई टोल्ड यू. When the number is less than 1, the power of 10 is a negative integer which is equal to the number of places by which the decimal point has been moved to the right. Okay. Now, ध्यान रखना बच्चों, when the number is greater than 1, the power of 10 is either 0 or a positive integer. Okay, in the previous one negative था, इस बार positive होगा, which is equal to the number of places by which the decimal point has been moved to the left. Remember, जब left की तरफ move करेगा तो क्या होता है, positive होता है. ठीक है, देखिए अब एक्सरसाइज में बच्चों कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें प्रैक्टिस के लिए. एक्सप्रेस द फॉलोइंग, सो आपसे क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हाउ विल यू डू दिस? सो इट इज वेरी इजी, एज यू ऑलरेडी नो, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए. सो आप डेसिमल को क्या करोगे, शिफ्ट करोगे कहाँ पे, राइट साइड. सो आप अगर चाहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 अपॉन कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 आएंगे. ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, 2 अपॉन 10 to the power 7. ओके, अब बच्चों इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 2 into 10 to the power minus 7. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ अब मैं आपको रिलेट करवाती हूँ, हमने कहाँ शिफ्ट करा है, राइट हैंड साइड. अब बच्चों देखिए, हम जब राइट हैंड साइड, जब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर क्या होगी 10 की, नेगेटिव इंटीजर. यू कैन सी दैट हमारा फाइनल आंसर. नाउ बच्चों, जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, डेसिमल यहाँ पे है. ठीक है, हमें कितने डिजिट मूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आंसर होगा 8.9256 इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ, अगेन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 10 टू द पावर 8, ये पॉजिटिव होगा. क्लियर? जब हम लेफ्ट में मूव करें पावर पॉजिटिव, राइट में मूव करें पावर नेगेटिव. नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग द यूजुअल फॉर्म. हाउ विल यू डू दिस? जस्ट रिमूव द डेसिमल, यू विल गेट 1000 इन द डिनोमिनेटर, 10 टू द पावर 5 एंड 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, 4325. ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2, राइट. 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 3, आपको 10 टू द पावर 2 बचेगा एंड फाइनल आंसर विल बी 4325 एंड उसके साथ 100 एंड 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दीजिए. दिस इज योर यूजुअल फॉर्म. क्लियर? इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड बच्चों आई होप इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाए. आपको स्टैंडर्ड ही फॉर्म लिखनी है. सो कैसे करेंगे, जैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा था, डेसिमल को इधर मूव कराई, 1 2 3 4 5 6 7. सो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है. आई होप क्लियर हुआ. नाउ यू कैन ट्राई आउट द क्वेश्चंस गिवन हियर, ओके, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. एंड बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए. सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. बाय बाय बच्चों.